السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے پی پی اور اب تک کی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ پہلے چلتے ہیں ہیڈ لائنز پہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کابینہ کے لیے 12 نگران وزراء کا تقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزراء کا تقرر نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان کی ایڈوائس پر کیا۔ وزراء کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ بھارت بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا بیان، کہا پاکستانی جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر عالمی توجہ بڑھنے پر بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی پہلی خاتون نگار گوہر کو لیفٹیننٹ جنرل بننے پر مبارکباد۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔ وہ ہماری قوم کی خواتین کے لیے باعث فخر ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا 4133 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کنفرم کیسز کی تعداد 2,13,470۔ گزشتہ روز کورونا سے 91 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,392 ہو گئی۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ اب تک 1,0802 افراد مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب بھی ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس نے 5,14,082 انسانی جانیں نگل لیں۔ وائرس سے اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ وائرس سے اب تک 58,01,646 مریض بھی صحت یاب ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے، جبکہ روس تیسرے نمبر پر ہے۔ این ڈی ایم اے نے طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی 10ویں کھیپ کی صوبوں کو ترسیل شروع کر دی۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان کو ماسک، حفاظتی سوٹ، میڈیکل گاؤن، فیس شیلڈ، سرجیکل کیپس، دستانے، پلاسٹک بوٹ، شوز کورز اور حفاظتی اینکیں دی گئی۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں 14,24,699 مکمل پی پی اے سیٹ فراہم کر چکے ہیں۔ شہباز شریف کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا دور گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا شہباز شریف کے ٹویٹ کے رد عمل، کہا موجودہ اپوزیشن لیڈر نورا کشتی کرتے ہوئے زرداری کو سڑکوں پر گھسنے کی بڑکیں لگا کر عوام کو بے وقوف بنا لیا کرتے تھے۔ سندھ کے ضلع عمرکوٹ میں احساس لنگر کھانے کا آغاز ہو گیا۔ معاون خصوصی تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا ٹویٹ، کہا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے قائم کیے گئے لنگر کھانے میں روزانہ 300 افراد کو کھانا مفت مہیا کیا جائے گا۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ، 1 لڑکا شہید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ، کہا بلا اشتعال فائرنگ سے تلواری گاؤں کا 1 لڑکا شہید ہوا۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے نوتعینات ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایڈیشنل آئی جی پولیس کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے افسروں کی میرٹ پر تعیناتی کی ہے۔ سیکریٹریٹ کے قیام سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ افسران ہر کام میرٹ پر کریں گے۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں اور 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے۔ گورنر پنجاب کی صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات میں گفتگو، کہا سیاسی مخالفین صبر کے ساتھ 2023 کے انتخابات کا انتظار کریں۔ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ عمران خان احتجاج کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا لیڈر نہیں۔
आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुल्का पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नोकंडी 47, मोहनजोदाड़ो और सिबी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान काबीना के लिए 12 निगरान वुज़रा का तकर्रुर किया है। उन्होंने ये तकरीरियाँ निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान की एडवाइस पर की हैं। इस सिलसिले में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वुज़रा में आफ्ताब इस्माइल खान, सरवर शाह, शौकत रशीद, नासिर हुसैन, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद यासीन, सैयद शबीउल हसनैन, मोहम्मद अली कायद, जौहर अली, रजब अली, इमाम यार बेग और अब्दुल जहान शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। भारत बलूचिस्तान में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत मुसलसल कोशिश करता चला आ रहा है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो। भारत पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों को भी मुतासिर कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी को भी भारत से मुतल्लिक आगाह कर चुका हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। पाकिस्तानी जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात चाहता है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर आलमी तवज्जो बढ़ने पर भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया। विफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान की पहली खातून निगार गौहर को लेफ्टिनेंट जनरल बनने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज़ी अखबार को टैग किया है और उन्होंने एक आम संगे मील अबूर किया है। वो हमारी कौम की ख़वातीन के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4133 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,13,470 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 1,08,273 हो गई है। सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में सामने आए, जहां मरीजों की तादाद 84,640 है। पंजाब में 76,262 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, जबकि बलूचिस्तान में 10,476 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 12,912 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 और आज़ाद कश्मीर में 1,093 केसेस सामने आए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 91 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 4,392 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद इस वक्त 1,08,2 हो गई है। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और NCOC की हिदायत पर अमल दरामद से पेंडेमिक पर काबू पाया जाने लगा है। सूबाई दार हुकूमत लाहौर में भी स्मार्ट लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से अब्दुर्रहमान राना की इस रिपोर्ट में। कोरोना पाकिस्तान में अपनी तबाही मचाने के बाद अब कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। कोरोना के महाज पर फ्रंट लाइन सोल्जर, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी अपने साथियों को खराज तहसीन पेश करते नजर आते हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि हुकूमती इक़दामात को भी तारीफ करते नजर आते हैं। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिकल का स्टाफ है, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और सलूट पेश करता हूं, इसलिए कि उन्होंने रात दिन एक करके अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चे, सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करके इस वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं। जी, मैं ENT स्पेशल की सिस्टर इंचार्ज हूँ और नर्सिस, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स
बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और ये जो डॉक्टर नर्सिस और पैरामेडिकल फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और बड़ी जानफशानी से काम कर रहे हैं। कोरोना से मुतासरा लोग बीमारी को शिकस्त देकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं वो बेहतरीन इलाज मुआवजे पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और पंजाब हुकूमत के भी शुक्रगुजार नजर आते हैं। चंद रोज़ कबल मेरा जो कोविड है वो पॉजिटिव आया था और मैंने अपने 14 दिन जो है आइसोलेशन के गुजार के अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी दोबारा टेस्ट हुआ और अब मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ। जब मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में फ़ीवर फील हुआ और साथ में डायरिया और वोमिट थी, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको कोविड के कुछ सिम्टम्स हैं, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी काफ़ी रहा और बॉडी पेन वगैरह, हेडेक बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अब अपना कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मैंने तब प्राइवेट अपना कोविड का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आई। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो पंजाब हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की थी कि मुझे उनका जो क्विक रिस्पॉन्स था मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई है उसके वेरी नेक्स्ट डे मुझे उनकी तरफ से कॉल आई है और उन्होंने मुझसे सारी डिटेल पूछी और उससे नेक्स्ट डे वो लोग जिस घर में मैं मतलब आइसोलेट थी, मैंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ था, वो लोग वहाँ आए मेरे घर पे। उन्होंने सारा घर एग्जामिन किया और उसके अलावा उन्होंने मेरे घर के जो बाकी अफराद थे उन सब के सैंपल लिए। मैं कोरोना पेशेंट था, मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पे मुझे इन्होंने एडमिट कर लिया और मुझे 10-12 दिन यहाँ रखा गया। यहाँ पे स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स और सब ने मेरी बहुत अच्छी केयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कहते हैं कि आपके घर वालों को तंग करेंगे आपका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद, उनको उठा लेंगे, ये करेंगे, ये सब झूठ है। और एक और बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है कि आपको जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत ने बहुत एहसन इक़दाम किए हैं हमारे लिए और मैं बहुत खुश हूँ। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह ने APP न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि NCOC और सूबाई हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर काबिल तहसीन है इनकी खिदमात और ख़राज तहसीन है उन तमाम हज़रात को और ख़ास तौर पर पाक आर्मी को इस हवाले से। और गवर्नमेंट जिस तरह मिल के जो SOPs उन्होंने बनाई है, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब और पूरी कैबिनेट इस सिलसिले में बड़ी मुतहर्रक है रात दिन। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो इंतज़ाम किया है इन्होंने, वेंटिलेटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ बेड लगाए हैं। और इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पर इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं। और इसमें इनके साथ साथ जो हमारी पुलिस है ये उनसे भी आगे है और इस तरह अफवाज भी हमारी जो है इस हवाले से आगे हैं सारे। तो इन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और इनको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूं इनको। कोरोना के बार पाकिस्तान में तो काम होते दिखाई देते हैं, पर ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ अब्दुर्रहमान राना, APP न्यूज़। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 5,14,082 इंसानी जानें निगल ली। वायरस से अब तक 1,05,92,660 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया भर में 896 अफराद वायरस से हलाक हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। वायरस से अब तक 58,01,646 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां केसेस की तादाद 27 लाख से ज़ायद है। ब्राज़ील कोरोना वायरस से केसेस की तादाद में दूसरा सर-ए-फ़हरिस्त मुल्क बन चुका है, जहां केसेस की तादाद 14 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि रूस कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां मरीजों की तादाद 6,47,000 से तजावुज़ कर चुकी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की 10वीं खेप की सूबों को तरसील शुरू कर दी है।
NDMA के तर्जमान के मुताबिक बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को 10वीं खेप का सामान भेज दिया गया है। बलूचिस्तान को मुख्तलिफ इकसाम के 1,21,986 और गिलगित बल्तिस्तान को 55,950 मास्क दिए गए। बलूचिस्तान को 5,811 और गिलगित बल्तिस्तान को 3,385 हिफाजती सूट दिए गए। बलूचिस्तान को 32,885 और गिलगित बल्तिस्तान को 15,069 मेडिकल गाउन दिए गए। तर्जमान ने कहा कि इसके अलावा फेस शील्ड, सर्जिकल कैप, दस्ताने, प्लास्टिक बूट, शूज़, कवर और हिफाजती ऐनकें भी वाफिर तादाद में दी गई। बाकी तमाम सूबों को भी 10वीं खेप की तरसील की जा रही है। तर्जमान के मुताबिक NDMA अब तक मुल्क भर में 14,24,699 मुकम्मल PPE सेट फ्राहम कर चुका है। और अब आपसे खबर शेयर करेंगे मुल्क में जारी दूसरे बहरान की। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 974 मुश्तरका टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक तकरीबन 9 करोड़ एकड़ रकबे पर सर्वे और तकरीबन 22 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,62,401 एकड़ पर सर्वे किया गया। अब तक सुबह भर में तकरीबन 3 करोड़ एकड़ पर सर्वे और 8,48,317 एकड़ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 1,08,731 एकड़ पर सर्वे और टिड्डी दल की मौजूदगी पर 5,071 एकड़ में ऑपरेशन किया गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,03,108 एकड़ पर सर्वे किया गया और 489 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सुबह बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,59,669 एकड़ पर सर्वे और 6,446 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ट्वीट के रद्द अमल में कहा है कि अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ के अवाम की आंखों में धूल झोंकने का दौर गुजर गया, जब आप नूरक कुश्ती किया करते थे और रद्द अमल में और जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बड़कें लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया करते थे। अब वो दौर नहीं है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी आपका यही ख्याल था। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में तारीख में पहली बार मुतवातर, दूसरी बार और 2/3 अक्सरियत मिली थी। अपने एक और ट्वीट में ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के रद्द अमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पॉलिसियाँ आज हम और पाकिस्तान के गरीब अवाम भुगत रहे हैं, लिहाजा ख्वाजा आसिफ कौमी इदारों की बात करते हुए थोड़ी सी तो शर्म करें। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि मुल्क भर में एहसास लंगर कायम किए जा रहे हैं और इस ज़िम्न में सुबह सिंध के ज़िला उमरकोट में एहसास लंगर खाने का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने ट्वीट में बताया कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से कायम किए गए इस लंगर खाने में रोज़ाना 300 अफराद को खाना मुफ्त मुहैया किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लंगर खाने का इफ्तिताह किया है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंगल की रात को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिलरी और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से तलवारी गांव का एक लड़का शहीद हुआ। पाक फौज ने भारतीय फौज का मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात होने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी ने मुलाकात की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए अफसरों की मेरिट पर तैनाती की है। सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से आवाम से किया गया वादा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए 33% तरक्याती बजट की रिंग फेसनिंग की गई है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए फंक्शनल होने से आवाम को अपने कामों के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा और वहाँ की आवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी सेक्रेटेरिएट के लिए आपकी तैनाती आपके लिए एजाज़ है। नए तैनात होने वाले अफसरान हर काम मेरिट पर करें, गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में ना लाएं। आवाम की खिदमत को शार बनाते हुए ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएं और अपने दफातर के दरवाजे लोगों के लिए खुले रखें।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। सियासी मुखालफिन सब्र के साथ इंतखाबात का इंतज़ार करें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बिरूए कार लाए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार गवर्नर पंजाब ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खिची से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ऑल अपोजिशन माइनस हो चुकी, उनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान एहतजाज की धमकियों से खौफजदा होने वाला लीडर नहीं। तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में करप्शन का दौर वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बार मुल्क में शफाफियत और मेरिट के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मुल्तान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 20 केसेस ज़ेर बहस लाए गए। इजलास में 16 केसेस को ड्रग कोर्ट्स भिजवाने, 2 को वार्निंग और 2 केसेस को आइंदा मीटिंग में ज़ेर बहस लाने का भी फैसला किया गया। डीसी आमिर खट्टक ने कानून से बालातर इक़दामात को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मेडिकल स्टोर मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करदा अद्वियात के रिकॉर्ड को मुमकिन बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे में कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक इक़दामात और कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में महकमे सेहत की जानिब से कोरोना टेस्टों की इस्तेदाद, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, तिबी सहूलियात और बेड्स की तादाद बढ़ाने और सूबे में टिड्डी दल के हमले से बचाव, मुमकिना नुकसानात का तखमीना और तदारुक, फसलों को महफूज बनाने से मुतल्लिक भी इजलास को ब्रीफिंग दी गई। और आखिर में आपसे खबर शेयर करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वस्ती, जनूबी पंजाबी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश मुल्तान 40, डेरा गाजी खान 22, खानेवाल 18, कोट अद्दू 1, ज़ियारत 10, खुजदार बारखान 4, पंजगोर दालबदीन कोयटा कलात 1, बन्नू में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नोकंडी 47, मोहनजोदड़ो और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की APP अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.app.com.pk।